Yes, students, in last class we have studied about superclass Pisces, in which we have studied about cartilaginous fish and bony fishes, and we have seen what are the different differences between bony fish and cartilaginous fish, like what type of endoskeleton is there, operculum is present or not, okay, and what type of scales are there. So these were the different difference between bony fish and cartilaginous fish. Now we have to move towards a superclass tetrapoda. Tetrapoda. Tetra mean four, poda mean foot. So that means here we can say 4 feet. 4 feet are present. 4 feet means two hind limb and two forelimb. जैसे हमारे दो हाथ है, दो पैर है, तो 4 हो गए. So that means the superclass is tetrapoda, and there are 4 different group in tetrapoda. One is a amphibia, second is a reptilia, third is aves, and fourth is a mammalia. So today we have to discuss about amphibia and a reptilia. So I have drawn two diagrams on this board. One is of frog and one is of general diagram of lizard. Now we are taking them as a amphibian or reptilian. Okay. So first we have to start with amphibia. Word amphib. Amphib means dual, or bios mean life. If you remember, one group we have studied that bryophyta. Bryophyta are known as amphibians of plant kingdom. So amphibian mean they live on land but they require water for, we can say, reproduction, to lay their egg or for fertilization. चाहे वो पानी में रहते हो ना रहते हो, but they depend on water for fertilization. So they we can say they live in water as well as on land. So dual habitat है, that's why they are known as a amphibians. Okay. Now if we talk about amphibian, what are the specific in amphibian? Then we can say two pairs of limb tetrapoda है तो होंगे. तो amphibian में अलग क्या है? Now first talk about the structure. After that we will discuss about the other features. And same for reptilia. In reptilia mean creeping or we can say क्रॉल, जो रैंक के या ऐसे चलते हो, उन एनिमल को बोलते हैं रेप्टिलिया. ओके. तो फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस सम अदर कैरेक्टर्स. नाउ द एम्फीबिया, the body of amphibia is mainly divided into head and trunk. Sometime tail may be present in some case and limbs है वो absent है in some case. But in generally जिसमें frog आते हैं सारे सारे, तो body of frog is divided into head and trunk. Now in head there is a pair of external layers जो nose का काम करते हैं. Then pair of eye. अब eyes में क्या है? एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन है, दैट इज नॉन एज निक्लिडेटिंग मेम्ब्रेन. और ये निक्लिडेटिंग मेम्ब्रेन क्या होती है? दिस इज एक्चुअली इन फ्रॉग और एम्फीबियन दे हैव eyelid. जैसे हमारी ये eyelid है, दिस इज द अपर eyelid and this is the lower eyelid. तो frogs have these eyelids, upper and lower eyelids. जो lower eyelid है उसके अंदर एक और eyelid होती है, that is known as this nictitating membrane. और nictitating membrane is a white और we can say opaque structure है जो किसको करती है? आई को प्रोटेक्ट करती है. अगर आपने डिस्कवरी पे किसी चैनल पे देखा होगा, इन क्रोकोडाइल और इन फ्रॉग, ये जैसे ही पानी में जाते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी एक लेयर ऐसे लगा लेते हैं आँख के आगे और खुली रहती है. ऐसे समझो कि हमने कोई यहाँ पर कोई एक ग्लास लगा लिया और फिर हम पानी में जा रहे हैं, लाइक दिस. तो दैट मीन्स इन आई विद eyelid and a nitritating membrane. Okay. After that there is a ear, but ear here is a specific type of ear that is known as tympanum. टिम्पेनम क्या है? दैट मीन्स जैसे हमारे यहाँ है, दिस इज द ईयर ऑफ, ये दिस इज द पिन्ना,
आफ्टर दैट दिस इज द ईयर ओपनिंग, और ईयर ओपनिंग के अंदर क्या है, ईयर ड्रम है जिसको कान का पर्दा बोलते हैं, एंड दिस ईयर ड्रम इज द टिम्पेनम। टिम्पेनम मीन ईयर ड्रम और ऑल्सो नोन एज टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। तो इसमें सिर्फ ईयर ड्रम होता है और टिम्पेनम होता है, द एक्सटर्नल ईयर है ये एब्सेंट होता है। तो आई में आईलिड है एंड निक्लेटेटिंग मेम्ब्रेन है, देन ईयर की जगह क्या है, टिम्पेनम है। दिस सेम टिम्पेनम प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स। ओके, ये निक्लेटेटिंग मेम्ब्रेन रेप्टाइल्स में भी है। ओके, नाउ कम टू द लिम्स। इफ यू टॉक अबाउट लिम्स देन देयर आर टू पेयर ऑफ लिम्स, आगे दो फोर लिम्स है, पीछे दो हाइंड लिम्स है, टोटल कितने होंगे, फोर होंगे। नाउ दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट डिजिट ऑन द लिम्स, जैसे हमारी उंगलियां हैं डिजिट्स हैं, मेनली जो फोर लिम्स में होते हैं उनमें डिजिट होती है 4, 1 2 3 4, और हाइंड लिम्ब में जनरली डिजिट होती है 5, 1 2 3 4 5। ओके, एंड हियर ये किस में हेल्प करते हैं, वो लिपिंग में हो और किसी करने में हो तो, लाइक इफ यू टॉक अबाउट हाइंड लिम्ब, तो हाइंड लिम्ब में देयर इज ए वेब लाइक स्ट्रक्चर। वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसे वो डक होती है पानी में, उस डक के क्या होते हैं, ये जो डिजिट्स हैं उनके बीच में से वेब होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर से फ्लैट बन जाता है एंड दैट विल हेल्प इन स्विमिंग। तो ये हाइंड लिम्ब पे क्या होते हैं, वेब्स होते हैं, तो वेब इन डिजिट। ओके, तो फोर लिम्ब जनरली 4 डिजिट एंड हाइंड लिम्ब जनरली 5 डिजिट। देयर इज नो क्लॉ, दैट मीन विदाउट ए क्लॉ, विदाउट क्लॉ। हेयर क्लॉ मीन है मेरा नाखून से, इन पे नाखून नहीं होते। ओके, बट इफ यू टॉक अबाउट रेप्टिलिया, यहाँ पर क्लॉ होंगे, इसको बाद में देखेंगे। सो हेड, नेल्स, आई, टिम्पेनम, फोरलिम्स, hind limbs. Okay, if you talk about skin, then here the skin is very thin and moist. Skin is thin and moist. जो स्किन है वो थिन होती है बिल्कुल और मॉइस्ट होती है, विदाउट स्केल्स, विदाउट स्केल्स। स्केल्स हमने किस में देखी थी, इन पाइसेस में, और रेप्टिलिया में भी स्केल्स हैं। तो स्किन इज थिन है, मॉइस्ट है, विदाउट स्केल है। ओके, नाउ these are the we can say green color spots are shown here. These are the different spots present on the frog. अब देखो दो एग्जांपल है, एक है फ्रॉग, इनको क्राइमेटोफोर्स बोलते हैं। स्किन कैसी है, थिन है, मॉइस्ट है। These structures are known as chromatophores, or we can say spots on body. Now there are two animal of this group, one is known as frog and other is known as toad। जो हमारे घरों में होता है दैट इज टॉड, नॉट फ्रॉग। जो फ्रॉग है वो आपको मिलेगा वाटर में या वाटर के आसपास। जो स्मॉल साइज का है दैट इज टॉड, और जो बड़े साइज का है दैट इज फ्रॉग। नाउ व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्रॉग एंड टॉड? जो फ्रॉग है उसका जो हेड है दैट इज ट्रायंगुलर शेप। द हेड ऑफ फ्रॉग इज ट्रायंगुलर शेप, और उसकी बॉडी पे ऐसे स्पॉट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, इफ यू टॉक अबाउट टॉड, तो जो टॉड का जो, अगर इसकी बात करें तो हेड इज ट्रायंगुलर शेप और बॉडी पे क्या होते हैं, स्पॉट्स होते हैं। अगर हियर इफ यू टॉक अबाउट टॉड, तो जो माउथ दैट मीन हेड है दैट इज सर्कुलर टाइप का थोड़ा सा है, दैट मीन नॉट ट्रायंगुलर, एंड स्पॉट्स एब्सेंट होते हैं। ठीक है, ये दो ही डिफरेंस करने हैं मेनली इसमें। सो दिस इज अबाउट द structure of frog. Now here the term is cloacal opening. Cloacal opening act as जैसे एनस था वैसे cloacal opening है। Yesterday I told you in last class that cloaca mean where urogenital system, that means urinal system, genital system, we can say reproductive system, and that alimentary canal open into a single opening। जैसे यहां से आ रही है, यूरिनल ट्रैक है, एक तरफ से आ रहा है, दैट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, और वी कैन से
एलिमेंट्री कैनाल, और थर्ड है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ये तीनों एक सिंगल ओपनिंग में खुलता है, दैट इज नोन एज ए क्लोएका। ऐसा क्लोएका इस रेप्टाइल्स में भी होगा। ओके, सो क्लोएका मीन a common opening for urinary tract, alimentary canal and reproductive tract. So that is known as cloaca. So here body is divided into head and trunk, two pair of limbs, forelimbs, hind limb। forelimb generally 4 digit, hind limb 5 digit होते हैं, webbed होते हैं, वो swimming में help करते हैं। Then body is with spot, आई इसमें क्या होती है, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होती है एंड आईलिड होती है। देन ear represent tympanum, the tympanum represent the ear, tympanum means we can see eardrum है, external ears are absent है। okay, so this is about the general structure of a amphibia। some other structure are also characters are also there, we will discuss separately। okay, जैसे हार्ट है या और कुछ चीजें हैं। now come to reptiles। if we talk about reptiles, that means they are creeping or we can say crawling animal, but the basic difference is the body is divided into head, neck, trunk and tail। so here is head, then neck, then trunk and then tail। इसमें क्या थी, बॉडी थी हेड और ट्रंक ओनली। आफ्टर दैट इफ यू टॉक अबाउट स्किन, तो हेयर स्किन इज ए कॉर्निफाइड स्किन। कॉर्निफाइड मीन्स क्या है, एक प्रोटीन है दैट इज नोन एज केराटिन, वो एक क्या बनाता है, हार्ड लेयर बनाता है, दैट फॉर्म ए हार्ड लेयर। एंड दिस कॉर्निफाइड स्किन कुड बी ऑफ टू टाइप, वन इज नोन एज स्केल एंड अदर इज नोन एज स्क्यूड। जो स्केल है वो हमें मिलती है लिजार्ड्स में एंड स्नेक्स में मेनली, और जो स्क्यूट है वो हमें मिलता है जैसे क्रोकोडाइल की बात करें या हम की बात करें टॉर्टॉइस की। दैट मीन दिस स्क्यूट इज ए हार्ड कवरिंग है एज कंपेयर टू स्केल। तो रेप्टाइल्स में क्या क्या आएंगे, लिजर्ड, देन स्नेक, then crocodile and tortoise, these are the main member of a reptilia। okay, so here head, neck, trunk and tail। तो इस पूरी बॉडी पे क्या होंगे, स्केल्स होंगे, these are the epidermal scales, we can say epidermal scales। जो स्क्यूट है इसका ओरिजिन थोड़ा सा अलग है, तो उसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे। अगेन two pairs of limb, forelimbs, hind limb। now see here the digits are 5 in number, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दोनों तरफ डिजिट क्या है, 5 in number है। एंड डिजिट्स आर विद क्लॉ, दैट मींस इन डिजिट्स पे क्या है, वी कैन से क्लॉ है, नाखून है, नेल्स है। तो इसमें क्या डिफरेंस हो गया, here the digits are 4 5, here digits are 5 5, digits are clawed without claw, and here the skin is thin and moist, here the skin is a cornified skin। okay, बात आई समझ, तो ये इसमें मेजर डिफरेंस है। अदर वी कैन से here the body is divided into head and trunk, but here body is divided into head, neck, trunk and tail। तो इस हिसाब से हम इनमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट सेम वही इसी में क्लोएका होगा, टिम्पेनम होगा, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होगी, बाकी चीजें जनरली क्या रहेगी, सेम रहेगी। सो हियर वी कैन से दिस इज अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। नाउ वी हैव टू डू सम स्पेसिफिक कैरेक्टर्स जो इसमें पढ़ लिए या नहीं पढ़े हैं। ओके, जो इंटरनल है, एंड सम आर वी कैन से some of examples that given in book। okay, now there is a term known as poikilothermal। poikilothermal mean
cold blooded animals. कोल्ड ब्लडेड एनिमल वो होते हैं वेयर बॉडी टेम्परेचर चेंज विद चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। जो बॉडी टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है एक्सटर्नल टेम्परेचर के साथ साथ। इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन बीइंग, then our body temperature is 37 degree Celsius and this temperature is constant. Nowadays temperature is about 40, तभी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 है। इन विंटर when temperature is 2 degree 3 degree 4 degree 5 degree or 10 degree, then our body temperature is still 37 degree Celsius. So such type of animals known as warm blooded, known as warm blooded। और warm blooded के सिर्फ दो ही ग्रुप हैं, one is aves and other is mammalia। उसके अलावा जितने भी इन जनरल जितने भी हैं एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शन, रेस्ट ऑल एनिमल्स आर poikilothermal if blood is there। एनिलिड से शुरू कर दो। so they are known as cold blooded। तो poikilothermal और cold blooded मीन बॉडी टेम्परेचर चेंजेस विद द चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो पाइसिस में भी ऐसा है, रेप्टिलिया में भी, एम्फीबियंस में भी। ओके, बर्ड्स एंड मैमल दे आर वार्म ब्लडेड। So they are poikilothermal, that means cold-blooded animal. Body temperature change with the change in external body temperature. Now, chamber of heart. If we talk about fish, then amphibians, then reptiles, birds, and mammals. So in fish there are two chamber heart, that means one auricle and one ventricle। If we talk about amphibian and reptiles, then there are three chambered heart। थ्री मीन टू ऑरिकल है एंड वन क्या है, वेंट्रिकल है। इफ यू टॉक अबाउट क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो इनमें हार्ट है फोर चैम्बर, टू ऑरिकल्स एंड टू वेंट्रिकल्स। ओके, तो इन पाइसिस टू चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स थ्री चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल में फोर चैम्बर हार्ट है, देन बर्ड्स एंड मैमल में फोर चैम्बर हार्ट, दैट मीन्स टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल। इन एम्फीबियन टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल, इन पाइसिस वन ऑरिकल वन वेंट्रिकल। ओके, सो दिस इज अबाउट द poikilothermal एंड वी कैन सी चैम्बर ऑफ हार्ट। तो देखो क्या क्या डिफरेंस यू कैन सी इन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। तो क्या है, एक डिफरेंस किसका आएगा, स्किन का, एक डिफरेंस आएगा बॉडी डिवीजन का, एक डिफरेंस आएगा डिजिट का, एक डिफरेंस आएगा क्लॉ का। ओके, तो ये दीज आर द डिफरेंट डिफरेंसेस बिटवीन वी कैन से एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। नाउ मूव टू सम जनरल कैरेक्टर्स और उन्हीं को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे इन थ्योरी फॉर्म। Now here we can see some other characters and differences between amphibia and reptilia. If we talk about habitat, then aquatic as well as terrestrial, and they are mostly terrestrial. इनको amphibian क्यों कहते हैं? Because they have dual life, water as well as land. Water for we can say reproduction. Then they are creeping and crawl animal है, इससे इसका नाम है reptilia. If we talk about body division, then head and trunk है, tail आती है, सब में एक example है salamandra। और hair, head, neck, trunk and tail। if we talk about skin, here moist है without scale and here covered by dry conified skin जो scale and scute है।
If we talk about eye, तो with eyelid है, nictitating membrane है, here the same. One more character in some reptilia, that means they shed their scale. जैसे वो कैंचुली होती है सांप की, वो shed कर देते हैं. Okay, तो lizard and snake shed their scale as skin cast. Then ear, both sides represent tympanum, represent the ear. That means only that we can say ear ड्रम है. देन क्लोएका कॉमन ओपनिंग है यूरिनल एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव ट्रैक के लिए. इन बोथ केस सेम है. इफ यू टॉक अबाउट रेस्पिरेशन, देन हियर रेस्पिरेशन इज थ्रू गिल्स. अगर किसकी बात करें, लार्वा की बात करें, दैट मीन इन लार्वा रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स. लंग्स टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है और स्किन भी है मॉइस्ट फॉर्म में, जब वो मिट्टी के अंदर रहते हैं तो दे आल्सो रेस्पायर थ्रू skin. That means exchange of gases. And here the respiration is through lungs. If we talk about heart, then 3-chambered heart, and here also 3-chambered heart but 4-chambered in crocodile. Then poikilothermal, ये spelling देखना in that means previous section वहाँ मैंने इसको E लिखा है, that is wrong, by mistake written, so it is POIKILO. okay, so not E, make the correction there. So they are cold-blooded. They are also cold-blooded. Sexes are separate. Fertilization external. Development indirect. Sexes separate है. Fertilization internal है. Oviparous है and fertilization is direct. Okay, so this is all about the characters given in a NCERT और the general. इसमें सारी चीजें आ गई. So you also can write the difference between amphibia and reptilia. जो same है वो तो difference होंगे नहीं. That means other क्या है. Okay, so this is all about the amphibia and reptilia. Now come to their examples. Now come to examples in amphibia. Buffo, that is toad. Toad का मैंने क्या बताया था, that is थोड़ा round है जो head है and without spot है. The rana, this is the common frog. इसमें ऐसे ट्राइंगुलर होगा और बॉडी पे स्पॉट होंगे. देन हाइला ट्री फ्रॉग, ये ऐसे लगता है जैसे फ्लाई करता है, ये ट्री फ्रॉग है. देन सैलेमेंड्रा, दिस इज द टेल्ड एम्फीबियन. ओके, टेल्ड, इस पे क्या है, टेल है. एंड ये है इक्थियोफिस, दिस इज लिम्बलेस, इसमें लिम्ब नहीं है और इसमें टेल है. इसमें हेड और ट्रंक दो ही पार्ट हैं. तो जो सैलेमेंड्रा को जब हम लिजर्ड के साथ कंपेयर करेंगे, देन वी कैन सी द हियर सैलेमेंड्रा skin is without scale. Salamander just look like we can say lizard. तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे, सैलेमेंड्रा में जो स्किन है वो क्या होगी, मॉस होगी, विदाउट स्केल होगी. एंड सेकंड, इस पे क्लॉ नहीं होंगे डिजिट्स पे. तो इक्थियोफिस, दिस इज द लिम्बलेस. ये याद रखना है, लिम्ब विच वन इज लिम्बलेस एम्फीबियन, विच वन इज टेल्ड एम्फीबियन. तो सैलेमेंड्रा. ओके, देन बफो, राना एंड हाइला. इफ वी टॉक अबाउट रेप्टिलिया, तो इसमें हमारे टर्टल आते हैं, देन लिजर्ड आती हैं, देन क्रोकोडाइल है, उसकी ग्रुप के मेंबर आते हैं, देन स्नेक्स आते हैं सारे के सारे. ओके, तो चेलॉन इज टर्टल एंड टेस्टिडो इज टॉर्टोइज. टेस्टिडो इज टॉर्टोइज. देखो, जो चिलोन है दैट इज मरीन है, और जो फोरलिम्स है दे मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर्स. यानी कि आगे वाले जो ऐसे फोरलिम्स हैं वो ऐसे फ्लिपर बना लेते हैं इन केस ऑफ टर्टल. ओके, और दूसरा जो आपने कभी देखा हो टॉर्टोइस, वो ये टेस्टिडो है. देन कैमिलियन, दैट इज ट्री लिजर्ड. कैमिलियन जो कलर चेंज करता है. कैलोटिस, ये गार्डन लिजर्ड है जिसको जो किरला बोलते हैं. सो कैमिलियन ये कलर चेंज करता है. देन कैलोटिस गार्डन लिजर्ड. ओके, देन हेमिडेक्टाइलस, दिस इज अ वॉल लिजर्ड जो कॉमन होती है. देन क्रोकोडाइलस, क्रोकोडाइल है. क्रोकोडाइल में क्या याद रखोगे, 4 चैम्बर्ड हार्ट है. इनमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं इसके मेंबर में. देन नाजा, ये कोबरा, ये स्नेक है. बंगेरस, क्रेट एंड वाइपरा, वाइपर. दिस बंगेरस इज रिटन इन एनसीईआरटी. बंगेरस, ये ए है यू की जगह, बट
एक्सेप्ट एनसीईआरटी सभी जगह यू लिखा हुआ है। ओके, तो दोनों ध्यान रखना। ओके, अगर कोई एग्जाम में ऐसा आ जाए तो। ओके, सो एम्फीबिया बफो, राना, हाइला। बफो मीन टॉड, राना, फ्रॉग, हाइला, ट्री फ्रॉग, सैलमेंडर, टेल्ड एम्फीबियन, इक्थियोफिश, लिम्बलेस एम्फीबियन, रेप्टिलिया, चिलॉन, टर्टल, फोर लिम्स मॉडिफाइड इनटू फ्लिपर, देन टेस्टुडो, टॉर्टोइस है, कैमिलियन जो कलर चेंज करता है, कैलोटिस जो किरला जिसको बोलते हैं, हेमिडेटालस कॉमन वॉल लिजर्ड है, देन क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर बोलते हैं, नाजा दैट इज कोबरा, वनगैरस क्रैट, वाइपरा वाइपर। और ये सारे के सारे क्या हैं, पॉइजनस स्नेक है। Okay, so this is all about the amphibia and reptilia. Only two classes are left, that is aves and mammalia. We'll discuss in next class. Thank you.